Hello students, in the previous lectures we have completed anterior teeth. Now we are starting with the posterior teeth. So in the posterior arch we have two set of teeth, premolars and molars. In this lecture we will be dealing with the maxillary premolars and the mandibular premolars. So what are premolars? As the name suggests, premolars. They are the teeth which are present mesial to molars, so they are called premolars, and or we can say distal to canines. So in between the canines and molars we have set of teeth, they are called premolars. In the maxillary arch, we have in each quadrant two premolars. So in the maxillary arch, we have four premolars, and in the mandibular arch, we have four premolars in both the right and left segment. So first, we will be dealing with the maxillary first premolar. Introductory part of the maxillary premolar. The maxillary first premolar is the fourth tooth from the midline. So first is central incisor, then lateral incisor, then canine, and then the first premolar. The premolars are so named because they are anterior to the molars in the permanent dentition, or we can say mesial to the molars. We have premolars. They are called bicuspids. Why bicuspids? Because they have two cusps. In the canine we have studied it has got one cusp. The premolars have two cusps, so they are called bicuspids. So this is the position in the palate. The fourth tooth from the midline is the premolar. So this one is the central incisor, this is the lateral incisor, canine, this one is the first premolar in both the sides. What is the importance of maxillary first premolar? It maintains the arch perimeter. The premolar helps in maintaining the arch perimeter. It assists the canine as a prehensile or tearing tooth. The canine is also a tearing tooth, so it also helps in tearing the food. To a lesser degree, it helps in grinding. Since it is a posterior teeth, is a set of posterior teeth, so it also helps in grinding the food. The chronology chart of the maxillary first premolar. First evidence of calcification, first 1.5 to 3 by 4 year. The crown completion is 5 to 6 years, eruption at the age of 10 to 11 years, and the root completion at the age of 12 to 13 years of age. What are the dimensions in millimeter? The cervico-occlusal length of crown. In the previous lecture, we were writing cervico-incisal length of crown. Now the incisal aspect, from where we chew the food or from where the tooth are in contact with the mandibular teeth. So for posterior teeth, we use the term occlusal. Instead of incisal aspect or incisal edge, incisal ridge, we will be using the term occlusal. So the fifth aspect we will read from this premolars and the molars is the occlusal aspect. Cervico-occlusal length of crown कितनी होती है maxillary first premolar की? 8.5 mm. The length of root is 14 mm. Mesodistal diameter of crown is 7 mm. Mesodistal diameter of crown at cervix is 5 mm. The buccolingual diameter of crown is 9 mm. So the buccolingual diameter of crown is 9 mm. जब हम इसके ऑक्लूजल एस्पेक्ट देखेंगे तब देखेंगे हम कि इसका बक्कोलिंगुअल लेंथ जो होता है वो कहीं ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मीजोडिस्टल. तो इसके आप डायमेंशन में भी चेक कर सकते हैं 9 mm एंड 7 mm. तो ये जो 2 mm का गैप है. Buccolingual diameter of crown at cervix is 8 mm. Curvature of cervical line mesially is 1 mm and curvature of cervical line distally is 0 mm. Means almost the cervical line here is straight and regular. 0 mm curvature इसका यहाँ पर दिखता है. डेंटल फॉर्मूला जिग्मोंडी पामर नोटेशन में देखें तो हम क्वाड्रेंट बनाएंगे और ये 4 टूथ है फ्रॉम द मिड लाइन. सो इन बोथ राइट एंड लेफ्ट सेगमेंट इट इज 4 and 4. FDI notation में it is 1 4 and 2 4. First is 1 is the quadrant, 4th is the tooth number. Here on the left side the second quadrant and the fourth tooth from the midline. Set of tooth कौन सा है? Deciduous नहीं, permanent. It is a permanent set of tooth. Class premolar, arch maxillary and type is first premolar. डेवलपमेंट अगर इसका देखें तो ये 4 लोब से डेवलप होता है, 3 बक्कल लोब एंड 2 and 1 लिंगुअल लोब. तो ये टोटल 4 लोब से प्रीमोलर डेवलप होते हैं. मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर हैज 2 cusp, द बक्कल cusp एंड द लिंगुअल और पैलेटल cusp. इसीलिए हम इसको बाइकस्पिड बोलते हैं. और मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर हैज गॉट 2 रूट्स, बक्कल एंड पैलेटल रूट. नाउ
The buccal, first we will be discussing the buccal aspect. This is the buccal aspect of the maxillary first premolar. Now we will discuss in detail buccal aspect. The crown is roughly of trapezoidal shape, as you can see in the diagram. इस crown जो होता है वो roughly trapezoidal shape का होता है. The mesial outline of the crown is slightly concave from the cervical to the mesial contact area. So this is the mesial outline, this is the distal outline. Mesial outline जो होता है वो slightly आपका slightly concave होता है फ्रॉम द सर्वाइकल लाइन टूवर्ड्स द मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया, जहाँ पे आपका क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर दिखता है. द मीजियल स्लोप ऑफ द बक्कल कस्प इज रादर स्ट्रेट एंड लॉन्गर देन द डिस्टल स्लोप. ये इसका मीजियल कस्प रिज है. मीजियल कस्प स्लोप जो होता है वो स्ट्रेट होता है और लॉन्गर होता है देन द डिस्टल स्लोप. मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर का ये एक साइड आइडेंटिफाइंग फीचर भी हो सकता है कि इसका जो मीजियल स्लोप होता है एज कम्पेयर टू डिस्टल स्लोप, मीजियल स्लोप बड़ा होता है और डिस्टल स्लोप थोड़ा सा छोटा होता है. ऐसे ही हम दिखेंगे इसमें कि जो डिस्टल आउटलाइन होता है क्राउन का बिलो द सर्वाइकल लाइन इज स्ट्रेट देन द मीजियल, ये लगभग आपका स्ट्रेट होता है. ऑल्दो इट मे शो सम इन सम टीथ, एक वेरिएशन हो सकता है कि कहीं आपको कॉन्केविटी दिख जाए. सरफेस कॉन्वेक्स होता है. बक्कल रिज, नाउ कमिंग ऑन टू द बक्कल रिज. पोस्टीरियर टीथ में आपको जैसे हमने कैनाइन में देखा था वैसे ही इसमें भी बक्कल एस्पेक्ट पे आपका बक्कल रिज होता है. प्रेजेंस ऑफ कंटिन्यूअस रिज फ्रॉम द कस्प टिप टू द सर्वाइकल मार्जिन ऑन द बक्कल सरफेस. आपके कस्प टिप से लेके सर्वाइकल मार्जिन तक एक आपकी रिज होती है. लीनियर एलिवेशन टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बक्कल रिज. वो आपके कस्प से स्टार्ट होगा और सर्वाइकल लाइन तक जाएगा. बक्कल एस्पेक्ट अगर रूट देखें, बक्कल एस्पेक्ट से अगर रूट देखें तो इसकी जो रूट होती है वो कैनाइन के कंपैरिजन में 3 to 4 mm शॉर्ट होती है. और अगर इसको हम लिंगुअल एस्पेक्ट से देखें तो कुछ इस तरीके से टूथ दिखता है. तो अब इसमें आप देख रहे हैं लिंगुअल एस्पेक्ट में डायग्राम में कि इसका जो लिंगुअल बक्कल कस्प है वो भी आपको लिंगुअल एस्पेक्ट से नज़र आता है. इसका मतलब ये है कि लिंगुअल कस्प जो होता है मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर का वो आपके बक्कल कस्प से छोटा होता है. और यही एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर और मैक्सिलरी सेकेंड प्रीमोलर को. तो इन दोनों के बीच में अगर आपको दो टूथ दे दिए जाएँ और अगर आपको डिफरेंस बताने को बोला जाए तो उसमें आप ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर दोनों कस्प ऑलमोस्ट इक्वल हैं तो वो आपका मैक्सिलरी सेकेंड प्रीमोलर होगा. और अगर दोनों कस्प में डायमेंशन में वेरिएशन है, मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर का जो आपका बक्कल कस्प है वो बड़ा रहता है और मैक्सिलरी लिंगुअल कस्प जो होता है वो छोटा होता है. दूसरा इसमें होता है कि मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर में जैसा हमने देखा 2 रूट होते हैं. जब हम मैक्सिलरी सेकेंड प्रीमोलर देखेंगे तो उसमें देखेंगे हम कि वो सिंगल रूटेड टूथ होता है. अब लिंगुअल एस्पेक्ट को डिटेल में देखें. द क्राउन टेपर्स टूवर्ड्स द लिंगुअल. जो पूरा का पूरा क्राउन होता है उसकी टेपरिंग होती है टूवर्ड्स द लिंगुअल साइड बिकॉज द लिंगुअल कस्प इज नैरोअर मीजियोडिस्टली. मीजियोडिस्टली आपका जो लिंगुअल कस्प होता है वो आपका नैरो होता है, तो इसमें एक टेपरिंग दिखती है. फिर द लिंगुअल कस्प इज स्मूथ एंड स्पिरॉइडल इन शेप. The cusp tip is pointed with mesial and distal slopes meeting at an angle almost 90 degree. यहाँ पे ये जो आपका लिंगुअल और लिंगुअल कस्प जो होता है उसके जो स्लोप्स होते हैं वो ऑलमोस्ट आपके 90 डिग्री पे जाके मीट करते हैं. द mesial and distal outline of the crown is कॉन्वेक्स. बाकी आपके जो मीजियल आउटलाइन लिंगुअल एस्पेक्ट से मीजियल और डिस्टल आउटलाइन होता है वो आपका ऑलमोस्ट कॉन्वेक्स होता है. लिंगुअल रिज, जैसे हमने देखा कि बक्कल रिज होता है वैसे ही आपका ये लिंगुअल रिज भी इसमें मिलता है लिंगुअल एस्पेक्ट में. प्रेजेंस ऑफ कंटिन्यूअस रिज फ्रॉम द कस्प टिप टूवर्ड्स द सर्वाइकल मार्जिन ऑन द लिंगुअल सरफेस. आपके कस्प टिप से लेकर लिंगुअल सर्वाइकल लाइन मार्जिन तक आपका एक रिज होता है जिसको हम लिंगुअल रिज बोलेंगे. सर्वाइकल लाइन कैसा है? इट इज़ रेगुलर विथ स्लाइट कर्वेचर टूवर्ड्स द रूट. ऑलमोस्ट रेगुलर है लेकिन स्लाइटली इसका जो ये आपका कर्वेचर आपका रूट के तरफ दिखता है. एंड द क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर सेंटर्ड ऑन दी रूट. जो आपका इसका सबसे ज़्यादा कर्वेचर होगा वो आपके रूट के सेंटर तरफ होगा. लिंगुअल कस्प इज शॉर्टर देन दी बक्कल कस्प. लिंगुअल कस्प आपका शॉर्ट रहेगा बक्कल कस्प से, इसलिए जब आप लिंगुअल एस्पेक्ट से देखेंगे तो आपका बक्कल कस्प का टिप दिखेगा. द टिप ऑफ बक्कल कस्प कैन बी सीन फ्रॉम दी लिंगुअल एस्पेक्ट. रूट की बात करें तो इट इज़ स्मूथ एंड कॉन्वेक्स. रूट आपका स्मूथ रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा.